So the chapter People as Resource, it's getting continued. Till now we have covered the education part. Now we are to cover the portion health, so that we will come to know what is the role of health in human capital formation. Firm maximize profit. कोई भी firm, कोई भी company जो है वो profit के ऊपर काम करती है, right? So, do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as a healthy worker because of ill health? कोई भी कंपनी जो है वो अनहेल्दी पर्सन, इल पर्सन, फिजिकली मेंटल, कोई भी इलनेस है तो वो दे विल नॉट एम्प्लॉय such type of person, because that such type of person is not going to give any profit to the employer. So what are the features of this health, that health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight illness? Please इसको underline करिए. How does a health helps a person? It helps him to realize his potential and the ability to fight illness. And health हम लोग किसको कहते हैं? एक health जो है उसकी एक definition क्या है? Will answer me. What is health? Fine. अगर एक कॉमन लेमन लैंग्वेज में हम बात करें, so we can say the absence of illness, that's a health. कोई बीमारी नहीं है, illness नहीं है, it means that's a health. A person is healthy when he's not suffering from any of the disease or the illness. Anyhow, an unhealthy person becomes a liability for an organization indeed. Health is an indispensable basis for realizing one's well-being. So a person is okay or he is able to work, we come to know the basic indicator is the health. So henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. अगर हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट के लिए जरूरत है, जरूरी है, या किसी भी टाइप के काम को करने के लिए, एटलीस्ट foremost condition is that we should be healthy. Will not be able to do any of the work unless we are healthy. So अगर ये चीज इतनी ही important है, it means the government must have taken the steps to improve the health of the people. So providing a good health has been the priority of the government. Our national policy also aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of population. Please underline this. हमारी जो health policies हैं, what is the aim of that health policy? It is to provide family welfare, healthcare through different types of hospitals, then nutritional services by different types of say providing the health facilities or even providing the nutritional food with a special focus on the underprivileged segment of population. जो हमारे underprivileged या poor हैं, या चाहे वो socially underprivileged हैं या economically underprivileged हैं, so वो लोग जो हैं उनके बारे में देखना, ये एक priority रही है हमारी government की.
Anyhow, over the past 5 decades, India has built up a vast health infrastructure. Infrastructure means जो buildings हैं, जिसमें हम लोग hospitals को include कर रहे हैं, and has developed manpower required at primary, secondary, and tertiary sector in government as well as in the private sector. प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर या जो टर्शियरी सेक्टर हैं, जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या हेल्थ इंडस्ट्री या मेडिकल इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, more you can say development has been taken place, more and more manpower is being employed, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, जो भी ये 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स में से अगेन इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द मेडिकल फील्ड, तो उसमें एक ट्रिमेंडस इंक्रीज जो है वो देखा गया। वी ऑल्सो नो कि पहले क्या था, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज जो थी इतनी इम्प्रूव नहीं थी, से एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उससे पहले भी आई मीन द सिचुएशन विच वाज देयर कि बिकॉज ऑफ इवन द माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स द कैजुअलिटी वाज मोर, राइट। कितनी ऐसी बीमारियां जो आजकल वैक्सीनेशन लग जाते हैं और वो आई मीन दैट आर क्यूरेबल, सो से 70 to 80 और 100 years बिफोर, उन बीमारियों से जो नंबर ऑफ पीपल डाइंग, दैट वाज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर डाइंग, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और द ट्यूबरक्लोसिस and many other diseases are there. That was only because the proper infrastructure was not there or proper health facilities were not there, or say the inventions in the field of medicine was not so there. But in say around 50 years, कम से कम पिछले 50 सालों में ये जो इंडस्ट्री है मेडिकल इंडस्ट्री, ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं डेवलपमेंट हो रही है, इन्वेंशंस भी हो रहे हैं, प्लस say the infrastructure is also developing, number of hospitals are you can say coming into existence. Even जालंधर में अगर आप देखें ना, कितने सारे हॉस्पिटल्स, वहां पर एक लेन है which is known as a hospital lanes, और पूरे एशिया में it is believed कि सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स जो हैं that is there in जालंधर. So many number of hospitals are there in very particular smaller city, क्योंकि इस समय तो फिलहाल से नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट जो है वो बढ़ गए हैं. आई रिमेम्बर when we people were very very small, तो उस समय MBBS डॉक्टर्स होते थे and that used to be sufficient and that used to treat all types of diseases. Not diseases, I'll call it illness, right? I mean multiple type of illness were treated by those MBBS doctors only. But आज के टाइम पे हम या पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं, अगर स्नीज भी कर रहे हैं तो we need to go to the specialist, right? Everyone demands for the specialist. तो अब जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, their number is also increasing and even the number of hospitals has also increased. अब आजकल हाल ये होता है कि कोई भी डॉक्टर जो है वो कुछ साल तक अपना एक कहीं जॉब या कहीं पे प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद दे प्रेफर टू ओपन देयर ओन हॉस्पिटल्स. दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. और अब तो एक नई टर्म जो है एग्जिस्टेंस में आई है, दैट इज द मेडिकल टूरिज्म. मेडिकल टूरिज्म एक कंसेप्ट है, आजकल नया कंसेप्ट है. उसमें क्या है कि जैसे इंडिया है, इंडिया इज अ वेरी वेल यू कैन से रेसिप्रोकेटिंग इन दिस मेडिकल टूरिज्म, जहां पर वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं दैट आर प्रोवाइडेड एट नॉमिनल. नॉमिनल मीन्स हम ये कह रहे हैं आम लोगों के लिए नॉमिनल नहीं, बट यस दोज हु आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, उनके लिए ये नॉमिनल सर्विसेज हैं. अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल्स, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, फोर्टिस है, स्कॉट्स है, वेदांताज हैं, ये कुछ चेन है हॉस्पिटल्स की. और कभी आप देखें वहां जाकर तो उनकी अगर आप रिसेप्शन देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल जो ICUs हैं या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, आप रिसेप्शन ही देखेंगे तो यू विल फील लाइक कि आप किसी होटल में आ गए. इंफ्रास्ट्रक्चर इस ढंग से बनाया हुआ है
no doubt they are charging a very high rate for the services being provided. But इनके जो आप कह सकते हैं customers हैं, they are almost the NRIs और the foreign patients, क्योंकि यही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उनको अपनी कंट्री में बहुत महंगी मिलती है, कंपैरेटिवली इंडिया में वो चीजें उनको सस्ती मिलती। इवन इन ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, इनके सर्विसेज बहुत बढ़िया हैं और वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। तो जितना भी कह सकते हैं कि फॉरेन पेशेंट है, दे प्रेफर टू गेट ट्रीटेड हियर। तो उनको फूड या एक आप कह सकते हैं अकोमोडेशंस, ये सब चीजों में एक वर्ल्ड क्लास, एक 5 स्टार आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर दिया जाता है। नो डाउट दे आर कॉस्टिंग ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट। आई टेल यू, वहाँ रिसेप्ट आपके कैफेटेरियाज भी हैं, ये जितने हॉस्पिटल्स हैं, दे आर मेंटेनिंग अ वेल इक्विप्ड कैफेटेरियाज जो किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। एंड द मनी दैट दे आर चार्जिंग, जो एक आपके हाई मल्टीप्लेक्सेस में जो चार्जेस होते हैं वो इन हॉस्पिटल में चार्ज करते हैं। इफ यू वांट टू हैव a cup of tea, that will cost around 150 or 200 rupees. I mean, such much of payments they are taking, but yes, the services which they are providing, that is a world class facilities. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन आप कहें कि सर्विसेज या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, इट इज नॉट लाइक दैट। बिकॉज अब एम्स है, एम्स जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में है। दैट हॉस्पिटल, आई मीन इट्स सच अ वे कि जो भी कोई सपोज कोई डिजीज है, डेडली डिजीज है, कहीं ट्रीट नहीं होती है तो एम्स में ले जाओ। पंजाब में क्या होता है कि जब बंदा बहुत सीरियस हो जाता है पीजीआई भेज देते हैं, राइट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पीजीआई भी, एम्स भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आप अगर वहां जाएं तो इतनी लंबी लाइंस, प्लस वहां पर कोई साफ सफाई नहीं है, कोई आपको लगेगा नहीं कि कोई सैनिटेशन है या कुछ, नथिंग लाइक दैट। पूरा एक सरकारी डिपार्टमेंट जो है प्रॉपरली वैसा ही है, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो ट्रीटमेंट है, वो आप कह सकते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो है वो करते हैं। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पंजाब में है पीजीआई ले जाओ, या फिर और ज्यादा दिक्कत होती है तो एम्स में ले जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ऑल इंडिया लेवल पर ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं लिमिटेड है। एम्स जैसा हॉस्पिटल है, अगर आपको वहाँ ट्रीटमेंट करवाना है तो आपके पास कोई बहुत बड़ा जैक होना चाहिए या लिंक होना चाहिए या सिफारिश होएगी, तब आपको जाके वहां पर एडमिशन मिलेगी, एडमिट करेंगे। इवन अगर आप एडमिशन की नहीं भी बात करें, जो ओपीडीज होते हैं, ओपीडीज मीन्स जहाँ आपने मॉर्निंग में जाना, सिर्फ चेकअप करवाना है, उसके लिए भी यू नीड द सिफारिश ऑफ समवन हायर ऑफिशियल्स एंड सो ऑन। हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं वो अपना ट्रीटमेंट एम्स में ही करवाते। सो नो डाउट ये बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन नहीं है, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं दे आर इनकम्पेरेबल। Anyhow, one box is there. These measures adopted have increased the life expectancy to over 67.5 years in 2013. 2013 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 67.5 इयर्स तक पहुंच गई थी। सी हम लोग ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जैसे बताया था, नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। सो इन दैट केस, ये जब हमारे बहुत मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा नहीं थी या डेवलपमेंट ज्यादा नहीं थे, तो मोर नंबर ऑफ पीपल वर dying at a very early age, decreasing the life expectancy. बट इस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रही है अराउंड 68% है इस समय भी, 68 इयर्स। सो ये एक एवरेज निकाल लिया जाता है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सारे ही इसी एज तक रहते हैं और उसके बाद दे डोंट लिव एंड सो ऑन। ये एक एवरेज निकाल लिया जाता है और उसके बाद ये एज जो एज है ये निकाली जाती है। अब जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है दैट इज अराउंड 80 इयर्स। वहां पर जो मेडिकल एडवांसमेंट्स हैं उसके कारण जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट हैज रीच अराउंड 80 इयर्स।
लाइफ स्पैन जो है वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा है. Anyhow, infant mortality rate has come down from 147 in 1951 to 40 in 2013. What is infant mortality rate? Infant mortality rate, it means the number of children or number of babies dying before attaining the age of 1 year. जो 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं, उसके बाद हम लोग ये बेबी वर्ड या एंड सो ऑन जो भी इनके आगे ग्रोथ ईयर्स के अकॉर्डिंग होता है, 1 साल तक का बच्चा इन्फेंट ही होता है, right? So the number of children dying before attaining the age of 1 year, that is the infant mortality rate. Crude birth rates have dropped to 21.4 and death rates to 7 within the same duration of time. जो डेथ रेट्स है, सॉरी बर्थ रेट्स हैं, दैट हैज आल्सो ड्रॉप्ड. उसका रीजन है अवेयरनेस अमंग द families that the less number of children are to be there, and even the death rate has also decreased. Birth rate क्या होता है? Number of babies born after every 1000 people, and death rate is number of people dying per 1000 during a particular period of time. So birth rate भी decrease हुई और डेथ रेट भी जो थी वो इस समय का जो हमारा एक सिनेरियो है इसमें दोनों ही डिक्रीज है. बीच में एक टाइम स्पैन क्या आया था कि जब मेडिकल फैसिलिटीज इम्प्रूव हो गई थी तो डेथ रेट तो कम हो गया, बर्थ रेट जो था वो अपनी ही वो सेम पेस पे था. उससे क्या हुआ, एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाज देयर, कंट्री में एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ गया था और लोग भी बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे, अवेयर ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन. सो ये जब एक एक्सप्लोजन सा हुआ तो उसके बाद फिर कुछ मेजर्स गवर्नमेंट ने भी निकाले फॉर द फैमिली प्लानिंग और फॉर रिड्यूसिंग द बर्थ रेट. इंक्रीज इन द life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country. Please underline kariye, increase in the life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country. कंट्री की फ्यूचर प्रोग्रेस जो है हेल्थ वाइज वो डिपेंड ही करती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और चाइल्ड केयर के ऊपर, बिकॉज दीज चिल्ड्रन दीज आर गोइंग टू फॉर्म द फ्यूचर से द जनरेशन और यस द फ्यूचर जनरेशन. सो इनकी जो केयर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. इंक्रीज इन लॉन्गेटिविटी, its longevity of life is an indicator of good quality of life marked by self-confidence. See, increase in longevity of life ये सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज पर ही डिपेंड नहीं करता, it also depends on the positive atmosphere which a person gets to live in, and even the self-confidence or the willingness to live. और ये सारी चीजें तभी होती हैं जब कंट्री में या घर में एक रहने का जो माहौल है वो पॉजिटिव होता है. रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी involves the protection of children from infection, ensuring nutrition along with mother and child. So हमारी जो गवर्नमेंट की मेडिकल या हेल्थ पॉलिसीज हैं उसमें स्ट्रेस दिया जाता है गर्ल चाइल्ड, child care, mother care, adolescent population, education to the children. So many these things are there which are, knowledge is given to the adolescents because many health problems arise at the time of adolescence.
So ये जो adolescent education है ये बहुत ज्यादा हमारे एक health policy का ही part है. So anyhow, there are few questions that what is the percentage increase in dispensaries? Anyhow, we need to go with the data itself. यहाँ पूछने वाली बात ये है कि do you think the increase in the number of doctors and nurses is adequate for India? If not, why? हमारी कंट्री में जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं क्या वो सफिशिएंट हैं और नहीं है तो क्यों? हाँ जी. सी द बेसिक रीजन इज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंक्रीज जो हो रहे हैं या इंक्रीज करने वो काफी हद तक पॉसिबल नहीं हो सकता है. और व्हाट आई आल्सो फील कि हमारी जो मेडिकल एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है दैट एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड. एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड प्लस आज के टाइम पे तो जो लोग हैं दे डिमांड फॉर द से मास्टर्स और स्पेशलिस्ट. राइट, पहले होता था कि एमबीबीएस डॉक्टर है वो ट्रीट कर लेता था. अब लोग जो है एमबीबीएस डॉक्टर नहीं माना जाता है, खास एमडी माना जाता है. एमडी दैट इज द मास्टर्स इन दिस फील्ड. राइट, उसके बाद अब एक जो टाइम पीरियड आ रहा है कि एमडी से भी ऊपर एक डिग्री है दैट इज डीएम, डॉक्टरेट इन मेडिसिन. तो अब लोग एमडी से भी ज्यादा डीएम को प्रेफर करते हैं. एंड गेटिंग द एजुकेशन, ये पूरा प्रोसेस जो है इट इज सो एक्सपेंसिव. हर कोई जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है. Anyhow, there are many places in India which do not have even these basic facilities. कितने ऐसे एरियाज हैं हमारे कंट्री में जहां पर बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड नहीं है. Data says there are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. Just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have maximum number of colleges. The number of medical colleges bhi kam hai, and the amount that one has to spend on the education of medical education, that is also so high that everyone cannot afford it. So that's the basic reason कि hospitals तो बढ़ रहे हैं but doctors nurses जो हैं that are very less in number. Anyhow, as far as the unemployment is concerned, that we will cover in your next class.